नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज JNRKB और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, शलोम, वणकम। In Chinese, konnichiwa. In Japanese, konnichiwa. I'm so sorry. My apologies, please. In Chinese, ni hao. Pradeep ji. Abariyako Jambo to our viewers from East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wonderful, absolutely wonderful. So, Pradeep ji, now the Modi 3.0 has really taken off. And the first action of Mr. Modi as soon as he became Prime Minister for the third time, consecutively for the third time, was to sanction somewhere around 2,800 crores for farmers, which is fantastic. Yes. Absolutely Yes, fantastic. yes. And the same action was taken by Mr. Eknath Shinde over here. So I think now it's very, very clear where the priorities of the new government are going to lie. Whereas infrastructure will form a major part, but I think there is going to be a thrust towards the rural sector. That's what I think, because if you notice the pattern of voting also in 2024, yes, rural India has voted against BJP, and I think Mr. Modi needs to get those votes back absolutely, because without those votes, the BJP might be in trouble, as and when elections are held again. And of course, we already have pending elections coming up in Maharashtra in October this year, so that could be a major factor for the farmers' thrust, which we can see in both Mr. Shinde and of course Mr. Modi. Pradeep ji. They had, in fact, Sharad Pawar believed that this farmer crisis, which the BJP probably couldn't solve, was a big factor. And it was really a factor that was acknowledged by Eknath Shinde himself, that because of the Achar Sanhita वगैरह, he couldn't do what he wanted to do. चाहे वो soya bean farmers हो, cotton farmers हो, milk producers हो, and onion farmers. He says there was a lot to be done, but I couldn't do it, and now he's trying to make amends before the next Vidhan Sabha elections. He has already done it. I think. Yes, sir. The compensation amount has already been sanctioned, Bilkul. And very, very shortly there will be disbursement of the relief package which is owed to the farmers, and I hope that happens very, very quickly, because at the moment we are facing a monsoon which is going to be really and truly heavy. तो कहने का मतलब ये हुआ कि अभी तक सूखे से हालत खराब थी और अब बाढ़ से हालत खराब होने वाली है. Exactly. So the state has to gear up for that. It's not easy being a chief minister, by the way. I don't even know why anybody would want to be a chief minister. But let's go straight across to our friend from the Bharatiya Janata Party, Sanjay Thakur Sahab. Sanjay Thakur Sahab, namaskar. नमस्कार सर, नमस्कार। जय हिंद, जय हिंद, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। जय भवानी, वंदे मातरम। जय सिया राम सर, जय सिया राम, हर हर महादेव। जय सिया राम, हर हर महादेव। सर सबसे बढ़िया चीज जो मुझे लगी नरेंद्र मोदी जी के थर्ड टर्म में, सबसे पहले जो उन्होंने सैंक्शन किया 2,28,000 करोड़, वो सबसे पहले फार्मर्स के लिए सैंक्शन किया, विच वॉज फैंटास्टिक। जो पहला सिग्नेचर उन्होंने किया, जो पहला हुक्म जो दिया गया है सरकार द्वारा, वो किसानों के लिए दिया गया है। तो लिहाजा क्या इससे प्रतीत होता है कि ये प्रायोरिटी इस बार इस सरकार की ग्रामीण भारत रहेगी? क्या हम लोग ये समझें इससे? मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा अगर कोई ऐसी बात है तो। आप बताएं सर, संजय ठाकुर साहब। नहीं, बिल्कुल ग्रामीण भारत होगा, मध्यम वर्गीय परिवार होगा, इसके बारे में स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है। और जो बातें आप कह रहे हैं बजाज साहब, मुझे खुशी इस बात की होती है कि देखिए, इस समय भारत देश का जो शासन है वो एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है, सेवा का काम, जिन्होंने कभी भी इलेक्शन को नजर में रख के ये काम करते ही नहीं हो। ये इतना बड़ा डिसबर्समेंट था, जो पेमेंट था, ये तो 1-1.5 महीना पहले भी कर सकते थे ना वो जी, लेकिन नहीं किया उन्होंने। तो चीजों को अपने समय से करते हैं, उसकी मेरिट तय करते हैं, और ये निश्चित तौर पे है कि उन्होंने ये कहा है कि आने वाले समय में मैं मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उनके लिए बहुत कुछ नहीं हो सका है अभी, और वो प्रायोरिटी होगी, उस पे वो काम हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, एट द मोमेंट देयर इज अ क्राइसिस इन रूरल इंडिया। ग्रामीण भारत में एक बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है सर, पिछले 40 साल से चल रहा है, अभी के नहीं है, कोई ये नहीं है कि मोदी जी के आने के बाद शुरू हुआ है, 40 बरस से चल रहा है सर। और स्पेशली महाराष्ट्र में, अगर आप विदर्भ में देखें, मराठवाड़ा में देखें, वहाँ हालत खराब है। अब तो खानदेश की भी वो हालत हो गई है।
वेस्टर्न पश्चिम महाराष्ट्र में फिलहाल स्थिति को ठीक ठाक है, लेकिन ये दो रीजन जो हैं और अब खानदेश भी यानी नॉर्दर्न महाराष्ट्र, वहां पर भी जरा हालत खराब है। और एकनाथ शिंदे साहब ने भी सबसे पहला काम किया है, जैसी आचार संहिता खत्म हुई है, नई सरकार जैसी बनी है, कि सीधा कॉम्पेंसेशन एकदम सैंक्शन करो अनियन फार्मर्स, सोयाबीन फार्मर्स और कॉटन फार्मर्स के लिए। आई होप ही डज समथिंग, प्रदीप जी, फॉर डेयरी फार्मर्स एज वेल। बिल्कुल सर। क्या डू यू थिंक दैट विल हैपन संजय ठाकुर साहब? स्पेशली डेयरी फार्मर्स जो हैं वो अभी जरा क्राइसिस में चल रहे हैं। नहीं, देखिए, जैसा कि आप कह ही रहे हैं बजाज साहब, मैंने पहले भी कहा कि ये इस समय महाराष्ट्र में भी, भारत देश की में भी एक संवेदनशील सरकार है जो समझती है चीजों को, और बिल्कुल उसी के तहत, चाहे यहाँ पे आदरणीय चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे साहब हो, चाहे भारत देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, इन लोगों ने हमेशा जो जरूरतमंद लोग हैं, जो विषय इनके सामने आते हैं, उससे ये मुंह नहीं मोड़ते हैं, इसको सामने जाके इसको फेस करते हैं, और उस समय जो इनसे मदद हो सकती है वो मदद करके उन स्थितियों से बाहर निकलने का प्रयास, यही भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी लोग हैं जहां भी, उन लोगों का वर्किंग अप्रोच ही यही है। इसलिए ये बिल्कुल, और अभी जरूरत है इस समय देश के किसानों को, फिर अचानक से बरसात हुई और उसमें फसलों का नुकसान हो जाना, तो ये सारी समस्याएं, तो ही जैसा आपने कहा कि ये कोई आज की समस्या नहीं है, प्रकृति से संबंधित समस्याएं हैं। लेकिन जब ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो इन समस्याओं के सामने चट्टान की तरह खड़ा रख के निर्णय लेके इससे प्रभावित लोगों को मदद करके उन स्थितियों से बाहर निकालने का जो प्रयास करता है, वही नेतृत्व, असली नेतृत्व होता है। और उसी पैटर्न पे चाहे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र की शिवसेना एकनाथ शिंदे साहब की सरकार हो, इसी तरीके से वो लोग। ठाकुर साहब, आपके सामने बहुत बड़ा एक डिफिकल्टी आया है कि आपके पेरेंट बॉडी आपके खिलाफ हो गए। मोहन भागवत जी ने खुलेआम कहा कि जो सेल्फ सेंटर्ड कैंपेन था मोदी जी के नाम नहीं लिए, पर पूरे देश जानता किसके बारे में बोल रहे थे। There was, और जो लो लेवल ऑफ कैंपेन, जो एक आपस में तनाव करने वाला वातावरण पैदा किया, आरएसएस बिल्कुल उसके खिलाफ था। और उन्होंने कहा कि मणिपुर वाले इशू, अब तक सिर्फ कांग्रेस उठा रहे थे मणिपुर वाले इशू, आज मोहन भागवत जी उठाने लगे कि मणिपुर में शांति होना चाहिए। और आपका कर्तव्य, ठाकुर साहब, आपका कर्तव्य ये आपसे कह रहा है कि मणिपुर में शांति आपको लाना पड़ेगा। ये हार्श वर्ड्स है मोहन भागवत जी का। जिस प्रकार से आज ऑर्गेनाइजर जो आरएसएस माउथ पीस है, वो आपको खुलेआम कर दिया कि अजित पवार के साथ अब क्यों अलायंस कर लिया, तो ये आपको आपके घर के अंदर ही विवाद पैदा हो गया। ठाकुर साहब, बहुत बड़ा मुश्किलात सामने आपके सामने आ गए। ठाकुर साहब, नहीं, ना ये विवाद है, ना ये कोई मुश्किलात है, यही भारतीय जनता पार्टी की खूबी है। आपके परिवार में, आपके परिवार का जो मुखिया होगा, अगर आपसे कोई गलती हो रही हो या कहीं कोई समस्या पैदा हो रही हो, तो उसके मुखिया अगर आपको उसके बारे में हिदायत देते हैं, ताकीद करते हैं, उसके बारे में कहते हैं, तो ये कोई परेशानी नहीं है, ये तो एक तरह का सहारा है, एक तरह से आपको बताया जा रहा है। और ये खूबी है इस सरकार की और इस सरकार के नेतृत्व की कि जो इन सब चीजों को, अरे भाई, वो अपने परिवार के मुखिया की बात सुन के कहां संकट में आएंगे, जब इस देश के विरोधी पक्ष के लोग लगातार उनको गाली बकते रहे, तरह तरह से कोसते रहे, उनके मौत की कामना करते रहे, उसको उन्होंने संकट नहीं समझा, तो क्या अपने परिवार के मुखिया की बात को संकट समझेंगे? निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे। उससे जो मुखिया ने खुलेआम कहा है, ठाकुर साहब, मुखिया ने समन्वय समिति में नहीं कहा है, मुखिया ने खुलेआम पूरे देश को संबोधित करते हुए कहा है। अगर खुलेआम आपके जो समन्वय समिति है बीजेपी आरएसएस में, उसमें कहा होता तो अलग बात है। ये तो खुलेआम आपको बोल के, पूरे देश को बोल के कहा कि देखो हम ये कर रहे हैं, मोदी जी आप ठीक नहीं कर रहे हो, ये पैगाम ये गया है पूरे देश में। तो लोकतंत्र का इससे अच्छा बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि अंदरूनी तौर पे समन्वय समिति में कह लेते, कोई जानता कोई नहीं जानता, फिर कोई मीडिया को लीक करता, फिर आधी अधूरी खबर मिलती, आप लोगों को आधी अधूरी खबर चलाते। उससे तो ये अच्छा है ना कि उन्होंने सीधे देश को संबोधित किया है और उन्होंने देश को ये बताया है कि कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र से ऊपर नहीं है, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं है, वो चाहे फिर कितना भी बड़ा व्यक्तित्व क्यों ना हो।
तो इससे अच्छा लोकतंत्र का उदाहरण और क्या हो सकता है नाम यार साहब। बिल्कुल फंटास्टिक। मगर आज राहुल गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस हैज डिस्ट्रॉयड द आइडिया ऑफ मोदी। एक मोदी कैंपेन चल रहा था, मोदी 1, मोदी 2, मोदी 3, मोदी जी के गारंटी। बोले इंडिया अलायंस और कांग्रेस ने द आइडिया ऑफ मोदी को डिस्ट्रॉय कर दिया। आज मोदी जी देखो कैसे बिहेव करता है, बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से बिहेव कर रहे हैं। अडवाणी जी से जाके मिले, मुरली मनोहर जी से जाके मिले, गोविंद जी से जाके मिले, तो सबसे मिलकर संविधान का माथा टेका संविधान के सामने। तो एक अलग मोदी है, ये डिक्टेटर मोदी नहीं है। राहुल गांधी का कहना है देयर इज नॉट अ डिक्टेटोरियल ऑटोक्रेटिक एंड टोटली एंटी डेमोक्रेटिक मोदी। ये मोदी जी को हमने ये बना दिया, मजबूर कर दिया कांग्रेस ने और इंडिया अलायंस ने। ठाकुर साहब चलिए, तो बहुत बधाई हो आपको, आपने मोदी जी को बदल दिया। तो क्या कांग्रेस ये गारंटी देगी क्या कि आगे से मोदी जी के सब कामों में, देश हित के कामों में कांग्रेस का समर्थन रहेगा? जैसा उनको चाहिए था वैसे मोदी जी बदल गए अगर, तो क्या कांग्रेस हर उनके कार्यक्रम में उनका सहयोग करेगी, संसद चलने देगी, कोई और अवधान नहीं पैदा करेगी? देखिए, राहुल गांधी जी की जो बात है वो बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आप लेकिन यहाँ बताइए पर कि संजय ये ठाकुर लोग साहब, लगातार इस देश जी। के लोग इनको मैंडेट नहीं दे रहे हैं, इनको नकार दे रहे हैं, और लगातार तीसरी बार भारत देश में नरेंद्र मोदी जी को और एनडीए को इस देश की जनता एक मैंडेट देती है, इस देश में सरकार नरेंद्र मोदी की बनती है, लेकिन क्योंकि उनकी सीटें कम हो गई ये इसी में खुश है। सर और ये मेजोरिटी उसी से तो की नीचे आ गए क्रेडिट ना ले रहे हैं कि सर। हम- सर भाई, 273 उनका चाहिए देश थी जानता है। सर 273 चाहिए थी मेजोरिटी के लिए, उससे तो नीचे आ गए ना, 240 पे आ गए। ठीक बात है ना बजाज साहब, जी। एनडीए को तो मिला है ना 273 के ऊपर। सर एनडीए को मिली है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज है, जिस आर्टिकल का जिक्र अभी प्रदीप जी कर रहे थे, रेफरेंस अभी दे रहे थे, वो आदरणीय सम्माननीय रतन शारदा जी ने लिखा है। रतन शारदा जी रतन शारदा जी बड़े सीनियर मेंबर हैं आरएसएस के। और लेट मी कोट फ्रॉम दैट आर्टिकल, ही सेज द बीजेपी वर्कर्स वर वेरी हैप्पी इन देयर बबल, enjoying the glow reflected from Modi ji's aura. They were not listening to voices on the street. He said the idea that you can only take selfies, put up posters and put up your pictures and you will get a full majority does not work. उन्होंने कॉन्ट्रास्ट किया है 2014 और 2019 में किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और संघ के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के, इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने भी मिलकर के मोदी जी को 303 सीटें दिलवाई। इस बार ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनमें ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, उनको आएगा तो मोदी। हाँ, मोदी आया है, दो राय नहीं है इसमें, लेकिन उसकी वजह से पार्टी का काफी घाटा हुआ है। क्या कहेंगे इसके बारे में संजय ठाकुर साहब? नहीं, देखिए, मैंडेट का जो फाइनल रिजल्ट है बजाज साहब, वो देख के तो ये समझ में ही आ रहा है कि घाटा हुआ है। और जहां तक रतन शारदा जी का प्रश्न है जी। तो हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने विचार सामने रखने के, और उनकी वो जो विचार है रतन शारदा जी का, वो आरएसएस के आइडियोलॉग हैं और उनका वो अपना विचार है, उन्होंने इसको जाहिर किया। और यही तो खूबी है ना लोकतंत्र की। रही बात इस तरह की बातें करने की, तो देखिए, ये निश्चित तौर पे जब पूरे चुनाव के आंकड़ों को आप देखेंगे तो वो आंकड़े ये बता रहे हैं कि इस देश में विपक्षियों का जो भ्रामक प्रचार रहा कि इस देश में संविधान बदल दिया जाएगा, जबकि बजाज साहब, ये राहुल गांधी भी जानते थे, ये शरद पवार साहब भी जानते थे, ये ममता बनर्जी भी जानती थी कि संविधान बदलने का न किसी को पावर है और न कोई बदल सकता है। सर आप ही ने शुरू किया ना, आप ही ने शुरू किया। वो आनंद हेगड़े साहब को क्या जरूरत पड़ी थी ये बोलने की? और एक दो और भी लोग हैं, उनका नाम मैं भूल जाता हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे बीजेपी के। ठीक है, अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह, सुनिए मैं बता दे रहा हूँ ना, आप जो जी। बोल रहे हैं, तो जिन लोगों ने ये गलतियां की उनको उसका खामियाजा भी मिल गया ना। मिला, लेकिन अयोध्या के सांसद लेकिन डैमेज तो कर दिया ना सर। हेगड़े जी ने कह दी, कुछ लोगों ने कह दिया। अब उसके बाद तीसरे फेज के चुनाव से लगातार प्रधानमंत्री जी इस देश को समझाते रहे, लेकिन इस देश का विपक्ष
किसी भी कीमत पे। मैं आपको बता रहा हूँ बजाज साहब, ये जो मैंडेट है ना, वो मैंडेट इस बात का है कि कुछ तबकों में ये लोग ये बताने में कामयाब हो गए कि भाई मोदी जी ने आपको घर दे दिया, मोदी जी ने आपको शौचालय दे दिया, मोदी जी ने आपको खाने के लिए राशन दे दिया, अब हम आपको क्या देंगे, आपके बैंक में आपको जमा करने के लिए पैसे देंगे, हम आपको 1 लाख रुपया दे देंगे। कहां से दे देंगे, कैसे दे देंगे, इस बात का कोई प्रोग्राम नहीं था। और आप इसे सीखें आप इसे सीखें सर। ये चेंज ना राहुल गांधी जी ने तो चेंज लाए। मोदी जी ने डीपी अपना चेंज कर लिया, डीपी के बैकग्राउंड चेंज कर लिया, और मोदी जी ने वो मोदी जी के परिवार वो हटा दिया। तो जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हमने मोदी जी को डिक्टेटर से डेमोक्रेट बना दिया, तो क्या हटा दिया, क्या हटा दिया? वो ट्विटर मोदी का परिवार हटवाने, मोदी का परिवार जो बोलते थे, आप भी लिखते थे ट्विटर अकाउंट के मोदी का परिवार, अमित शाह जी लिखते थे वो तो मैंने अभी भी लिखा हुआ है। नहीं, मगर मोदी जी ने बोले जब ये कहा गया कि मोदी का अपना परिवार नहीं है, हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन में बताया कि भाई मोदी का परिवार नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी का परिवार विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, और इस पार्टी में राहुल गांधी जी मगर क्रेडिट ले रहे हैं। देखो, मैंने कांग्रेस ने मोदी जी को डिक्टेटर से डेमोक्रेट बना दिया। बीच में मोदी जी ने जो संविधान के सामने अपना माथा टेक रहे, वो फोटो उन्होंने बैकग्राउंड में रखा था, वो अभी हट गया। अभी तो दूसरा कुछ है। कम से कम आप लोगों को विपक्ष की तरह बात नहीं करना चाहिए। नहीं, हम तो 2014 में सुनिए रामबिहार साहब, 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत देश की लोकतंत्र का मंदिर जब वहां घुसने लगे, तो माथा टेक के प्रणाम करके जब घुसे थे, तो वो संविधान को अपनी तरफ से रिस्पेक्ट दिया गया था। संविधान को बनाने वाले, इस देश को संविधान को देने वाले पूजनी बाबा साहब अंबेडकर की हर बात को, लंदन में उनको चाहे घर हो उनका, उसको लेके संग्रहालय बनाना क्यों नहीं, इतने सालों तक जो लोग सत्ता में थे उन्होंने बना दिया था। नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद लंदन का वो घर जहां पूजनी बाबा साहब अंबेडकर रहते थे, उसको लेके संग्रहालय बनाया गया। सर, आप एक बात भूल गए संजय ठाकुर जी, पूरी बात बताइए ना, पूरी बात क्यों नहीं बता रहे? हिंदू मिल पे सर पूरी बात बताइए। सॉरी सर, पूरी बात बताइए। जो लंदन वाला घर था जहां पर बाबा साहब अंबेडकर रहा करते थे, किसी भी सरकार ने कोई प्रयत्न नहीं किया उसको अक्वायर करने के लिए। मोदी जी की सरकार सबसे पहले आई और उन्होंने उस घर को खरीदा, उसके बाद ये हुआ। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने आदेश दिया। उस समय के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने ये सारी व्यवस्था की। तो जिसने, देखिए, जो बार बार कसम खाता हो संविधान की, जो संविधान के दायरे में चलता हो, जो संवैधानिक संस्थाओं की इज्जत करता हो, उसके ऊपर अगर संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले, ऑर्डिनेंस का पेपर फाड़ने वाले राहुल गांधी इस तरह का बयान देते हैं, तो क्या आवश्यकता पड़ गई आप लोगों को उनको इतनी तवज्जो देने की? हम ये कहने की राहुल गांधी, आप गलत समझ रहे हो। हम तो सिर्फ आपके दिल में क्या है वो टोटल को, देश को समझा रहे हैं कि देखो, राहुल गांधी ये कह रहे हैं, मगर संजय ठाकुर साहब जो मोदी जी के परिवार है, जो मोदी जी को मानते हैं, वो क्या कहते हैं? तो आपके मन का वर्तन वो था ना नामबिहार साहब, कि प्रधानमंत्री और उनकी माता जी जिस यूपीए की चेयरपर्सन थी, बैठ के एक कलेक्टिव डिसीजन हुआ और एक ऑर्डिनेंस बनाया गया, और ऑर्डिनेंस उनके हाथ में दिया गया, और उन्होंने डिक्टेटर की तरह ऑर्डिनेंस फाड़ के फेंक दिया और बोला संविधान की ऐसी तैसी और इस देश के प्रधानमंत्री की ऐसी की तैसी, मैं संविधान में सबसे ऊपर हूं। ये व्यवहार करने वाले राहुल गांधी, तो फिर भी उनको 100 सीटें कैसे मिल गई सर? अच्छा भाई, ये मिस्ट्री सॉल्व करो यार संजय ठाकुर साहब, ये थोड़ी सी मिस्ट्री मेरे लिए। कांग्रेस की 99 है कि 101 है? वो बोलते हैं 101 आ गई हमारी। वो दो कहां से आई? लद्दाख के एमपी है। लद्दाख के आ गया, ये आ गया, कांग्रेस में आ गया। और ये अपना सांगली वाले भाई साहब, सांगली वाले, यस, सांगली वाले भाई साहब दोनों आ गए। But have they joined the Congress party? The very next day he went to meet Congress president. He has met Congress president. So obviously, see, he is won because had there been हाथ का पंजा, the हाथ का पंजा would have won there. There was such a situation. अब मैं यही कह रहा हूँ, ये सबसे बड़ा टेस्ट केस है सांगली। जो आगे के चुनाव की बात करते हैं ना बजाज साहब, उनके लिए सबसे बड़ा टेस्ट केस है कि वहां मसाल का सिंबल था जी, हाथ का पंजा सिंबल नहीं था, और वोट पड़ गई हाथ के पंजे को।
लेकिन आप देखिए जो महाराष्ट्र की 48 जो वोट पड़ गई उस हाथ के पंजे, उस पंजे पे जो नहीं था, वही मैं कह रहा हूँ, वोट पड़ गई उस हाथ के पंजे पे जो नहीं था जी तो महाराष्ट्र के चुनाव में 48 सीटों की आप जब पूरी विवेचना करेंगे ना बजाज साहब, जी जी, तो आपको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, शिंदे जी का जो गठबंधन है, उस गठबंधन में जहां जहां एक नाथ शिंदे जी ने सीटें जीती हैं, वो सारी सीटें सीधे सीधे उद्धव ठाकरे जी के सामने जीती हैं। इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का मराठी मानुस जिसको अपने साथ रखने का दम भरते थे उद्धव ठाकरे जी, उसने एक नाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को वोट दे दिया। ये तो जो संविधान बदल देंगे और मुस्लिम दलित वोट का पोलराइजेशन हुआ, कांग्रेस और शरद पवार जी ने अपना फायदा कर लिया, उनको मत मिले, वो लोग जीत गए इससे। अगर किसी का नुकसान हुआ है महाराष्ट्र में, सबसे बड़ा नुकसान किसी का हुआ है तो उद्धव ठाकरे जी हैं, जिनका what he's saying is perfectly right, एकदम बरोबर है संजय ठाकुर साहब। They has lost 24% से सीधा 17% पे आए, nearly 7% लॉस है। और एक नाथ शिंदे जी पहला चुनाव लड़ रहे हैं, वो 13% वोट ले लिया उन्होंने। या 13% एक नाथ शिंदे जी ने फर्स्ट टाइम 2.5 साल में पार्टी तैयार करके 13% वोट ले लिया। 13 point something, yes. But that is the real thing. तो 17% उद्धव ठाकरे जी का और 13% प्लस एक नाथ शिंदे जी का 2 साल में हासिल किया। 17% में कितना बड़ा पोलराइजेशन मुस्लिम और दलित वोट है, वो सोचिए आप। असल में तो क्या बचा है? लेकिन संजय ठाकुर साहब के पास बचा है 7-8% वोट। सफल हो गए, नीचे तक लोगों को झूठ बोल के गुमराह करने में सफल हो गए कि संविधान बदल दिया जाएगा। वो जो वोट शिफ्ट हुआ है उधर, वही डिफरेंस हो गया है। तो ये देखिए, जो सच्चाई है उसको स्वीकार भी करना पड़ेगा, उसकी विवेचना भी करनी पड़ेगी। ठाकुर साहब, और मैं और इसके आगे जाके एक बात मराठा वोट को आप अंडरएस्टिमेट कर रहे हो, आपका ध्यान नहीं गया है। अंडरएस्टिमेट कर रहे हो। महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय मतों में भी उत्तर भारतीय संकट हुआ है। अगर उत्तर भारतीयों ने संजय पाटिल की सीट पे संजय पाटिल को वोट न दिया होता तो संजय पाटिल जीतते ही नहीं। उत्तर भारतीयों का मत भी कुछ उस तरफ गया है। मराठा इन वोट 40-45% गया है आज सर, 45% गया है। नॉर्थ इंडियन वोट 45% गया है संजय जी का। कैसे गया है, क्यों गया है, इसका तो विश्लेषण करना पड़ेगा ना जी। वो तो आपको करना पड़ेगा ना सर। ऐसी जरांगे पाटिल जी का आप अंडरएस्टिमेट कर रहे हो। जरांगे पाटिल जी ने बड़े बड़े दिग्गज को, आपके जितने हैं, पंकजा मुंडे, मुनगंटीवार, राव साहेब दानवे, भारती पवार, नवनीत राणा, कपिल पाटिल, दिग्गज 3 कैबिनेट मिनिस्टर, एक स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर, आज फिर ठाकुर साहब वही जरांगे पाटिल फिर आंदोलन पर बैठे, फिर भूख हड़ताल पे बैठे और पूरे मराठा समाज एक होकर उनके साथ है। आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। मैं यही कह रहा हूँ नामबियार साहब कि इस समय देश में यही स्थिति है कि विपक्षी जो सत्ता से बाहर थे, वो सत्ता में आने के लिए किसी भी कीमत पे कोई भी काम कर सकते थे। देश टूट जाए, जातियों में विखंडित हो जाए, आपस में जातियां लड़ने लगे, ओबीसी लड़े, मराठा लड़े, दलित लड़े, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमको सत्ता में आना है। जब इस तरह का देश में विपक्ष हो तो ये दुर्भाग्यपूर्ण ही है भारत देश के लिए। लेकिन आप चिंता मत करिए, भारत की सत्ता में शासन कर रहे लोग जो बैठे हैं, उनको भी समझ रहा है ये क्या हुआ है और इसका भी इलाज सही तरीके से किया जाएगा। लेकिन हमारी देश की भोली भाली जनता को ये समझाया जाएगा जी, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। एक बार झूठ बोल के आप गुमराह कर सकते हैं देश के लोगों को, लेकिन बार बार ये नहीं होने वाला है। लेकिन संजय ठाकुर साहब, अजीत दादा पवार साहब के आसपास जितने लोग हैं, अजीत दादा पवार खुद भी, अभी जो उनका 25वां अधिवेशन हुआ, 25 सालगिरह मनाई गई एनसीपी की, उसमें उन्होंने क्लियर कट बोला है कि जहाँ तक बीजेपी का सवाल है और जनाब शिवसेना का सवाल है, यानी शिंदे सेना, एक्चुअली इट इज द रियल शिवसेना आज की तारीख में, तो उन्होंने एनसीपी यानी अजीत दादा पवार के कैंडिडेट्स के लिए जैसा काम करना चाहिए था वैसा नहीं किया है। ये उनका मानना है सर। तो भाई अजीत दादा पवार अगर ऐसा कहते हैं तो अजीत दादा पवार भी तो बारामती में सुनेत्रा पवार जी का एक कैंपेन कर रहे थे। कहां जाके बाहर उन्होंने किसका कैंपेन कर दिया? देखिए, सवाल ये नहीं है जी। मैं पहले भी कह चुका हूं, ऑफिशियल प्रवक्ता के तौर पे मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र है, सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। अजीत दादा पवार को कुछ भी एलिगेशन लगाने के पहले अपना वोट परसेंटेज देखना पड़ेगा। 2.3 या 3.2% अगर आपका वोट बैंक है तो हम कितना भी जोर लगा देंगे, क्या हो जाएगा उससे जी? आपको अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। इससे ज्यादा
मैं और कुछ नहीं कहना चाहता आरोप आई लगाने एग्री विद पे। यू। मोदी जी ने जब पीएमओ के स्टाफ को एड्रेस कर रहे थे तो उनसे वो मांगा कि मैं आपसे 3 चीज मांग रहा हूं, विकसित भारत की तरफ हम दौड़ रहे, जो उपनिषद का उन्होंने कहा उठो जागो और अपने पद की ओर दौड़ो, तो उन्होंने कहा क्लैरिटी ऑफ थॉट, आई वांट माय पीपल टू हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट, faith in their conviction and character to act। मोदी जी ऐसे एक मैनेजमेंट स्पीच दे दिया वहां पर पीएमओ को, उनको बोला कि आपको तैयार रहना पड़ेगा एक्शन के लिए, हम एक बड़ा क्वांटम जंप ले रहे हैं विकसित भारत की ओर। और बहुत मोटिवेटिंग स्पीच था नरेंद्र मोदी जी के, वो बहुत मोटिवेटिंग स्पीच था ठाकुर साहब। 3 पिलर्स जो क्लैरिटी ऑफ थॉट, फेथ इन कन्विक्शन, कैरेक्टर टू एक्ट। हाउ यू सी दैट? वेरी वेरी मोटिवेटेड टॉक। नहीं, बिल्कुल मोटिवेटेड टॉक। देखिए, ये उसी नेतृत्व की क्षमता है ना बिहार साहब। ये तो हम भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं अंदर खाने में ये सोचते हैं कि थोड़ा सा हमको भी इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका मिला और देश की जनता ने ये मैंडेट दे के देश को जलने से बचा लिया, वरना इस देश का विपक्षी दल इस देश में आग लगाने की कोशिश कर रहा था। उनको आज ये मैंडेट, आज ये ईवीएम की बात नहीं करते हैं, लेकिन कर रहे हैं अगर सर, कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। अभी भी बताइए, अभी भी ईवीएम की बात कर रहे हैं, जी, मतलब जी, ये जी, विश्वास जी। किसका करेंगे? जी। इनको देश में आग ही लगाना है और कुछ नहीं करना है। किसी भी कीमत पे जातिगत लड़ाई करा के मराठवाड़ा को सांगली से, पश्चिम महाराष्ट्र से लड़ा के और विदर्भ को खानदेश से लड़ा के, किसी भी कीमत पे हम लड़ा के सत्ता में आना चाहते हैं। तुम लड़ जाओ, तुम मर जाओ, तुम बर्बाद हो जाओ, हिंदुस्तान रहे कि ना रहे, लेकिन हमको सत्ता में आना है। जब इस लेकिन तरह सर ये बताएं अभी आगे क्या, क्योंकि अक्टूबर में स्टेट में इलेक्शन है सर, महाराष्ट्र में इलेक्शंस हैं, उसके लिए क्या तैयारी है सर? बिकॉज दीज रिजल्ट्स आर वेरी अलार्मिंग स्पेशली फॉर द महायुति के लिए तो बड़ा शॉकिंग रिजल्ट है ना सर ये तो, क्योंकि अब उसके असेंबली सेगमेंट्स की अगर आप एनालिसिस करें तो आपकी तो मतलब सीटें जो है बहुत कम हो गई हैं। नहीं, देखिए बजाज साहब, एक बहुत साधारण सा मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूं। इस चुनाव के आप जो परसेंटेज ऑफ वोट्स देख रहे हैं, बीजेपी का परसेंटेज ऑफ वोट 33-34%, इनका शिंदे जी का लगभग 13-14%, और जब अजीत पवार जी का मिलाते हैं आप, तो ये सब मिलके खुद ही आप देखेंगे तो लगभग 50% के आसपास चले जाता है। ये देखिए, ये स्ट्रेटेजिक डिवीजन था और लास्ट मोमेंट पे जो इस देश की माइनॉरिटीज ने नरेंद्र मोदी को हराना है, मोदी गवर्नमेंट को देश से, सत्ता से बाहर निकालना है, इसलिए वोट दिया। और संविधान बदल दिया जाएगा, इस भ्रम में जिन लोगों ने वोट दिया, जिनको लग रहा था कि मोदी को हम वोट नहीं देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे तो हमको लाख रुपया मिलने लगेगा। कांग्रेस शासित प्रदेशों में जो लोग जाके वहां लाइन लगा के बैठे कह रहे हैं हमारा 1 सर लाख, वो तो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो तो बीजेपी ऑर्गेनाइज कर रही है, वो तो सारे ऐसा तो कांग्रेस कहेगी कि जिसको पैसा चाहिए वो तो जाएगा ही ना मांगने। खैर जो भी है सर, चलते चलते ये भी बता दें कि अभी जो प्रदीप जी ने सवाल पूछा उसका अच्छी तरीके से जवाब दिया नहीं आपने। कौन सा सवाल? हमारे आदरणीय झरंगे पाटिल साहब जो हैं वो एक बार फिर बैठ गए हैं उपवास पे, मैं तो कह तो रहा उपोषण हूँ। पे बैठ गए हैं और मराठा आरक्षण एक बार फिर शुरू हो जाएगा। और इसके पीछे कौन है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, किस प्रकार हो रहा है। आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है सर, प्लीज नहीं, हमारे लिए इसको अंडर एस्टिमेट मत करिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, हमारे लिए खतरा नहीं है। चलिए गुड, हम तो उसको कर लेंगे मैनेज। सुनिए जी। पूरी बात सुनिए। बोलिए सर। आप जो कह रहे हैं ना कि कहां से आ रहा है पैसा, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, देश तोड़ने की स्थिति में भी, हालात में भी ये सत्ता पाना चाहते हैं, तो मराठा वोटों के सबसे बड़े ठेकेदार वही हैं जहां से पैसा आ रहा है, जहां से चलाया जा रहा है जी। और अब जरंगे पाटिल कह रहे हैं कि मैं 288 सीटों पे लड़ाऊंगा, तो लड़ाएं जरंगे पाटिल, लड़ाएंगे तो सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं मठाधीशों को होगा जो पैसा देके चला रहे हैं, भिंडरा वाला पाल रहे हैं जी। लेकिन वैसे भाई जरंगे पाटिल जी को मैंने अगर संत मराठा जरनैल हितों सिंह की जी चिंता पिंडरा होगी, वाले का जरंगे पाटिल जी को अगर मराठा हितों की चिंता है जी, तो आपने इस सरकार में कुछ पा लिया मराठाओं के लिए? आप और कुछ पाने की जुगत करते और मैं अधिक से अधिक क्या पालूं उसकी कोशिश करते, लेकिन बजाय ये करने के आप महाराष्ट्र में इस देश के मासूम जनता को और मराठाओं को आप बलि का बकरा बनाने जा सर रहे हैं। उसको भिंडरावाला मत बोलिए। भिंडरावाला का इंटरव्यू मैंने 27 बार किया है, 27 बार। भिंडरावाले ने आज तक कभी खालिस्तान की डिमांड कभी नहीं करी थी। ये
मैं बोल चुका हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल चुका हूँ, 1000 बार बोल चुका हूँ, और जिसके लिए बाय द वे अडवाणी जी ने मुझे एक अवार्ड भी दिया था, लेकिन वो बड़ी पुरानी बात हो गई। खैर, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट कंग्रेचुलेशन सर, Mr. Modi is now Prime Minister for the third consecutive time. He has equaled Pandit Jawaharlal Nehru's record. I hope the third term will be more spectacular than the first. Now, I want to ask him about Jaunpur Yes, because we have another guest waiting. ठाकुर साहब, आपने बहुत जौनपुर में बहुत मेहनत की, आप वहां पर कृपाशंकर जी के लिए बहुत मेहनत की, क्यों वहां पर क्या पोस्टमार्टम है? बहुत एक मिनट में आप नहीं, वहां पे भी यही देखिए, जो जातिगत समीकरण हुआ, कृपाशंकर सिंह के यहाँ जो समाजवादी कैंडिडेट था वो मौर्य जात के थे, कुशवाहा, और वहां पे परंपरागत लगभग 2 लाख वोट उस जात के थे जो परंपरागत तौर पे बीजेपी के साथ में और बीएसपी के साथ में बटे हुए थे। उनको अपनी जाति का कैंडिडेट मिलने की वजह से वो पूरा का पूरा जब मत उस तरफ चले गया तो यादव, मुस्लिम और वो वोट का कॉम्बिनेशन इतना भारी पड़ गया कि कृपाशंकर सिंह जी जीतने वाले हैं। बीच में ये लग रहा था कि आगे हैं थोड़ा सा, नहीं तरफ होके पड़ गए। और यहाँ पे दूसरी तरफ कृपाशंकर सिंह के साथ जो सवर्ण मत। to you. Thank you, sir. Third term for Mr. Modi. I hope the third term will be more spectacular than the first two. कि अयोध्या हार गई, बीजेपी अयोध्या नहीं हारी, और अगर कोई हारा है तो सनातनी हार गए हैं। कि जो लोकसभा सीट थी बजाज साहब, वहाँ पे 7 लाख मुसलमान और 17 लाख हिंदू वोटर हैं। 7 लाख मुसलमानों ने मिलके 5.5 लाख वोट दे दिया जाके, लेकिन 17 लाख हिंदुओं ने मिलके जाके 4.5 लाख वोट भी नहीं दे पाए। Right, sir. Thank you very much. नमस्कार, जय श्री राम। सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू। And at the moment, for the first time from the